तो लाइक दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्रियंका जी अनम्यूट करिए। मैम आप मुझे सुन पाए थे मैम? नहीं, आपका पूरा म्यूट हो गया। सॉरी मैम। तो मेरा क्वेश्चन है, जब हमारे जो पुराने क्लाइंट्स रहते हैं ना मैम, विच वी हैव ऑलरेडी डन देयर कंसल्टेशन, वी नो देयर यूज, सो कैन वी टेक देयर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस? यस 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 यस, आपको तो आंसर पता है ना, यस या नो का। यस मैम। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके ओके, सो कैन वी गो बैक टू द क्लाइंट्स एंड आस्क दैट अब तब आपका 1 ईयर पहले आपका इश्यू ये था, अभी ये रिजॉल्व हुआ है क्या नहीं? वी कैन जस्ट कंफर्म, क्रॉस कंफर्म और समथिंग। अगर आप अपने क्लाइंट से इतने अच्छे टर्म्स पे हैं, आप कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस ही तो कर दें। Okay, ma'am, one urgent question I have, ma'am, if I can get the answer from you. Actually मेरे जेठ जी बहुत bad alcohol addiction में हैं. He was admitted recently also. 2 days back he was discharged. But हम ये solution चाह रहे हैं कि हम उन्हें rehabilitation center में भेजना चाह रहे हैं. Will he be out of the addiction, ma'am? I just want to know that question because the whole family is getting disturbed with one person. See, I think it will take a little bit of time. Immediate future में तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनका एडिक्शन छुड़वाना, बट मे बी थोड़े टाइम बाद why not send him and see maybe it works. देखिए, अगर किसी का yes no आता है रिक्वेस्ट में, जैसे प्रियंका जी ने बोला मेरा साबित आया, तो मतलब अभी पॉसिबिलिटी नहीं है छूटने की। आप क्या करेंगे, आप इसे रेमेडी से सप्लीमेंट करेंगे। जैसे मैंने इतनी सारी एडिक्शन की आपको वो दिया, आपने एडिक्शन की वो आप अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना भेजना चाहते हैं तो भेजिए, साथ में उन्हें वो सारे रेमेडीज दीजिए। आप वैदिक स्विच वर्ड की दे सकते हैं, क्रिस्टल की दे सकते हैं, ये सारे दे सकते हैं ना, हमारे पास इतनी सारी रेमेडीज है। आपने अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पूछा। Yes, ma'am. Actually, the issue is like they have a love marriage and the wife is Christian and she doesn't believe all these things, ma'am. Actually, एक बार मैंने रुद्राक्ष दिया था और she came back to us telling that he is behaving very violently after wearing all these things. You do all these things and send him home. I have to bear up everything. She complains like that, ma'am. So he has returned everything whatever I have given and nothing is getting accepted over there. So what possible I can do? निकिता जी ने लिखा है, you can do that. You can either do proxy chanting for him. Yes, ma'am. His mother is doing it for yes, him. wonderful. You can also give him healing Reiki. I also think in this case Reiki will work because जो कोई फिजिकल रेमेडी करने को तैयार नहीं है, आप उन्हें बस हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं। आप उनके लिए होपोनोपोनो भी कर सकते हैं। Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank When you so much. somebody does not want to help themselves, it is very difficult that you can help them. Yes, ma'am. He is not actually, all his sisters, brother, everyone are trying to make him understand. When he is out of like when he is feeling little better, he again wants to start back. When he is totally down, he comes to us, he cries, I'm not feeling well, I'm not able to eat, I'm not able to walk and all. All these issues come up and we have to take up all the things, and again if he is little fine, again he starts back, ma'am. So it's being very difficult for us to. मतलब वही है ना, जो लोग एडिक्शन में होते हैं उनके जो इमीडिएट वो है उन्हीं को हेल्प मांगनी पड़ती है। तो इफ हिज वाइफ इज नॉट रेडी, द बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन डू प्रॉक्सी चैंटिंग, रिहैब, आई एग्री। एंड आप उन्हें मतलब देखो, वाटर थेरेपी तो नहीं दे सकते, उनकी वाइफ ही नहीं कर रही, उनके घर का वास्तु चेक कर लो, सब लोग बोल रहे हैं। मुझे पर्सनली Not possible, ma'am. They won't. She doesn't allow me. I never went into their house, ma'am, till now. She's not in proper terms with me also. She doesn't talk to me. So then you just pray for them and send him healing Reiki. That's all that you can do. Yes, ma'am. Okay. कभी कभी किसी किसी का कर्म भी होता है। Yes. ठीक है। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. एक सेकेंड रुकिए प्रियंका जी। ओके, 1-2 क्वेश्चंस हैं, मैं ले लूँ। कभी कभी ना हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। अच्छा, एडिक्शन इज विच हाउस? नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में एडिक्शन 6th and 8th हाउस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब हम युतिया देखते हैं एडिक्शन के लिए, बट आप 8th हाउस भी देख सकते हैं ओनली फॉर एडिक्शन। आई ऑल्सो थिंक रेकी इज द बेस्ट। क्रिस्टल वो पहनेंगे नहीं, वास्तु वो करने नहीं देंगे, वाटर थेरेपी आप दे नहीं सकते। 6th and 8th हाउस में से आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है, एक सर्टन कुछ कॉम्बिनेशन 6th, 8th, 12th हाउस के बनते हैं तो एडिक्शन होता है, बट आप 6th या 8th में से दोनों ले सकते हैं।
इफ यू ट्रीट इट एज अ डिजीज यू टेक इट एज 6th, इफ यू ट्रीट इट एज समथिंग हिडन कि ये तो छुपी हुई चीज है तो आप 8th ले सकते हैं। लॉयल सिलेक्शन कौन सा हाउस है, मतलब बापू जी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, मुझे समझ नहीं आया। बोलिए श्री पूजा जी। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझना चाहूंगी, ये कंफ्यूजन मुझे रह गया है। जैसे कि अगर हम एक कार्ड से रीडिंग करती हूँ तो पहला ये होगा कि जैसे मुझे क्लाइंट ने पूछा कि क्या मैंने शॉप पे किसी ब्लैक मैजिक किया है, ये उनका क्वेश्चन है, तो क्या है, तो पहले मुझे डिसाइड करना है कि आगम निगम है क्वेश्चन, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड हाउस है। हाँ, तो मैं लिख दिया। उसके बाद कार्ड स्प्रेड करने हैं सब, अभी जैसे हमने शफल किया। और पहले आप बताइए आपने आगम निगम लिया, क्या लिया इस क्वेश्चन को? है आगम, मतलब आया ही है, मतलब आया ना, हुआ है आगम लाइफ में। जी हाँ, मतलब वो एनर्जी आई हुई है मेरे पास। तो अभी कार्ड जैसे मैंने चूज किया डेथ हेल्थ से, हाउस चूज करा। श्री पूजा जी आपने हाउस क्या चूज करा? 8th हाउस चूज कर देंगे। ओके ठीक है, हम ब्लैक मैजिक हिडन एनर्जी हिडन चीजों के लिए कोई भी उसके लिए 8th हाउस सिलेक्ट करते हैं। ठीक। अब आप कार्ड दिखाइए, एक सेकंड मुझे आपको ऐड करने दीजिए, ऐड स्पॉटलाइट दिखाइए, कार्ड क्या आया? 12 लिखा हुआ है, राहु का कार्ड है ये। खारिज आया। हाँ मैम, उसके ऊपर खारिज आया, यस या नो में क्या है? आगम के क्वेश्चन में खारिज आया। बस मुझे अब यही से आपको पूछना है कि यहाँ पे कार्ड पे लिखा है खारिज, तो अब मैं देखूंगी आगम का क्वेश्चन था, खारिज आगम का क्वेश्चन है और उसमें आ गया खारिज, तो मतलब नो। ओके, नहीं किया। आगम क्वेश्चन में खारिज या मुंकलेब आएगा तो नो, निगम क्वेश्चन में खारिज या मुंकलेब आएगा तो यस। हमने आगम का क्वेश्चन अज्यूम किया, आगम के क्वेश्चन के हिसाब से कार्ड्स को एनर्जी दी। हाँ, हमारा आया खारिज, तो मतलब नो, किसी ने ब्लैक नहीं किया। ओके, अगर ये कोई और होता कार्ड और अगर सब हाँ वाला कर लेते हैं कि होता मान लो मुझे चाहिए कोई और साबित का दाखिला, अभी आया होता इज्जतमा, ठीक है, तो होता यस किया है। ठीक है, तो अभी मुझे आगे अगर पूछा क्लाइंट ने तो किसने किया है मैम, अब मैं मुझे उसका प्रोसेस जानना है। ठीक है, हमें आया ये सिंबल है लाइन डॉट डॉट लाइन, ठीक है, 15 नंबर है, इज्जतमा है। पहले हम जाएंगे 16 शक्ल वाले चार्ट पे। ठीक है, इज्जतमा में हमने देखा कि आया है यूनिसेक्स नपुंसक मेल। ठीक है, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मे बी इट इज़ अ मैन बट मे बी फेमिनिन होगा वो आदमी, थोड़ा सा रेगुलर जो हमारा डेफिनेशन ऑफ मेन है कि मैनली नहीं होगा, थोड़ा सा फेमिनिन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे फिजिकल अपीयरेंस पे कि वो बातों में बहुत अच्छे होंगे, बहुत टॉल नहीं होंगे, मीडियम बिल्ट होगी, हो सकता है हाइट में कम हो या मीडियम हो। ठीक है, बहुत अच्छे से बातें करते होंगे, बातों से सबको वो कर लेते होंगे, दिमाग बहुत तेज होगा, ऐसे करके डिस्क्राइब करेंगे। मर्क्यूरी आया ना, ये देखिए, हाँ मर्क्यूरी आया। मर्क्यूरी के आपने वैसे भी फीचर्स पढ़े होंगे न्यूमरोलॉजी में भी सब उनके साथ, तो आप मर्क्यूरी के अगर यस फेमिनिन मैन, मर्क्यूरी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, अगर आपको मर्क्यूरी को डिस्क्राइब करना होता है एज अ पर्सन को, जुपिटर डिस्क्राइब, कोरियन बॉयज होते हैं, है तो मस्त दिखने में ऐसे दिखते हैं। अगर मुझे जुपिटर को डिस्क्राइब करना होता है एज अ पर्सन, मैं बोलती कि 45 होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, टीचर जैसे होंगे, सबको ज्ञान देते रहते होंगे, हल्के से हैवी बिल्ट होंगे। ठीक है, दैट इज हाउ आई वुड। वीनस डिस्क्राइब करना होता तो मैं बोलती 24-25 साल की लड़की है। ठीक है, व्हाटएवर मेल फीमेल आया तो 24-25 इयर्स के हैं, वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव, वो आते हैं तो सब उनको ही देखते हैं, लाइक दैट। अब मुझे पूरा इजी। ओके, आई होप इस क्वेश्चन के साथ सबको ही हो गया हो कि डिस्क्राइब कैसे करना है। यस नो, रेना जी अनम्यूट करिए। मैम जैसे अभी श्री पूजा जी ने पूछा, मुझे ये जानना था कि ये सारी चीजें तो हमने पता कर ली किसने किया, लेकिन इस केस में अगर कोई पूछता है कब तक रहेगा, तो फिर हमें डाइस से पूरा हरफा कैलकुलेट कर, ठीक, कब तक के लिए आपको हरफा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ड्रमल से हम हरफा नहीं कैलकुलेट कर सकते, कार्ड से आप टाइम। ओके, एंड मैम जो ये आपने स्कॉर्पियो कैंसर लियो ये दिए हुए हैं, ये ज़ोडिएक्स, ये हमें उनके डेट ऑफ बर्थ मतलब उनका मंथ जानना है या? वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है जैसे सपोज आया, मैं शेयर करती हूँ,
एक सेकेंड। अब सपोज आया, मान लीजिए आया अंकिश, तो एक्वेरियस है, ठीक है। इधर उनकी डेट ऑफ बर्थ एक्वेरियस पीरियड में फॉलो करती है, और देयर फीचर्स आर ऑफ एक्वेरियस पीपल, ओके ठीक है। अब सपोज मुझे स्कॉर्पियो डिस्क्राइब करना होता है, मैं बोलती बहुत मिस्टीरियस है, आईज देख के ऐसा लगता है कि सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, चुप रहते होंगे। सो विद ऑल दोज फीचर्स आप मतलब अब मार्स भी है और स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाती हूँ फिजिकल एट्रीब्यूट, तो आप बोल सकते हो कि एथलेटिक होंगे, टॉल होंगे, पैशनेट होंगे। पैशनेट तो स्कॉर्पियो का फीचर है, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते होंगे पर बहुत एक्शन ओरिएंटेड होंगे, वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते होंगे या कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी लगाते होंगे। अगर एनर्जी नहीं लगाते तो जब बोलते होंगे अग्रेसिव होंगे। सो ऑल दीज चार्ट्स दैट आई एम गोइंग टू सेंड यू, आपको ये सारे चार्ट्स कंबाइन करके आंसर्स देने पड़ेंगे। एंड मैम जो ये डायरेक्शंस हैं नॉर्थ साउथ, जरूरी है वो हमने घर का ही देखना है, उनके घर का, या सिटी टाइप? नो 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 नो, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बोला घर का नॉर्थ, घर का साउथ। ओके आप कहीं का भी बोल सकते हैं। ओके, एज पर द क्वेश्चन हम उनको आंसर करेंगे। जी जी, ठीक, थैंक यू। कैन आई टेक अ 2 minute ब्रेक प्लीज? आप सभी 2 minutes का ब्रेक ले लीजिए, आई विल जस्ट बी बैक। चलिए मुझे बताइए किस किस को मजेदार लग रहा है ये सेशन? किस किस को सेशन बहुत मजेदार लग रहा है? मतलब यू कैन प्रिडिक्ट, इवन मैं देख रही थी, यू कैन प्रिडिक्ट इवन यहाँ तक कि आप ये भी बता रहे हैं किस दिशा से है, कैसा प्रेजेंटेशन है, कैसे दिखते हैं। तो जैसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में हम बता देते हैं ना जी, अच्छा लग रहा है, वेरी एक्साइटिंग। एंड मैं बार बार एक चीज आप लोगों को कह रही हूँ, इसमें आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग हैंड बनाइए, बिकॉज जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती दे कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम हियर। बहुत करेक्ट इसकी वो है, इसकी बहुत करेक्ट प्रिडिक्शंस हैं। हाँ जी पल्लवी जी, एक हफ्ता, जस्ट 1 week यू गिव इट टू दिस साइंस। तभी हमने इसको वीकली रखा था कि आप वीक में सीखकर इसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। एंड जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना छोटी छोटी बातों के लिए। गुरजीत जी आपके क्वेश्चन का आंसर सृष्टि दे देती हैं अभी, ठीक है, लेकिन ये क्या है, मैं भी सीख रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। यस देखिए, वैसे मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई एम मास्टर इन दिस रमल विद्या, क्योंकि मेरे पास 2 टूल है, मैं रमल विद्या और एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन कर लेती हूँ। एवरीवन हैज डिफरेंट थिंग्स, आई एम मास्टर, बट वो पढ़ाने वाला पेशेंट सृष्टि में है। होता है ना, आप किसी मोडालिटी से ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं पढ़ाने के लिए, जैसे विजिटिंग कार्ड आ रहा है, लोगो आ रहा है, वास्तु आ रहा है, न्यूमरोलॉजी आ रहा है, सो आई कनेक्ट मोर विद दीज साइंसेस। बट रमल के अल्टीमेट रिजल्ट है, जब कभी भी मैंने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखा और जब कभी भी रमल को किया, आंसर्स ऑलमोस्ट सेम आते हैं। तो जिनका हाथ अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, दे कैन यूज रमल फॉर देयर फ्यूचर के लिए आप रमल यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, ठीक है। और इसमें हाथ पक्का करने का इतना सा ही मतलब है कि एक हफ्ते की प्रैक्टिस। आई थिंक सबको कुंडली बनानी आ गई है, रमल कुंडली, पहले 4 कार्ड निकाल के रमल कुंडली बनानी आ गई है, बनानी आ चुकी है सबको, ठीक है। आज जो सृष्टि आगम और निगम के हिसाब से येस नो और कार्ड के ऊपर जो है प्रेडिक्शन सिखा रही है, वो भी समझ आ चुका है आप लोगों को, ठीक है। टाइम फ्रेम निकालना भी आ गया आपको, कितने दिन कितने महीने, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस पर आप लिख के रखिए कि मैंने इस दिन प्रेडिक्ट किया था, ये इस दिन का टाइम फ्रेम दिखा रहा है, फिर देखिए क्या वो उस टाइम फ्रेम में काम पूरा हुआ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा जी। यस सृष्टि, कुछ क्वेश्चंस हैं चैट में, आप देख लीजिए ना, अभी वो देख रही हूँ। अभी ना मैं 1 सेकंड ब्रेक लिया एंड मुझे रियलाइज हुआ, अभी स्टार्टिंग क्लास में किसी ने पूछा था कि उनके बेटे के लिए कॉर्पोरेट लॉ अच्छा है या नहीं। किसने पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा, बट पूछा था। तो अगर रचना जी ने पूछा था शायद, यस रचना जी ने पूछा था, तो अगर वो मेरे पास आती और बोलती कि मेरे बेटे के लिए क्या प्रोफेशन अच्छा है, नेहा जी, अच्छा चलो ठीक है, जिसने भी पूछा था, सॉरी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, मेरे बेटे के लिए क्या प्रोफेशन अच्छा है, कार्ड सेलेक्ट करे, एक कार्ड निकाला, यस नो सब भूल गए, बस ये प्लैनेट देखा, ठीक है। मेरे बेटे के लिए क्या प्रोफेशन अच्छे हैं, केतु वाले प्लैनेट्स, केतु वाले बता दीजिए, ठीक है। अब मेरे बेटे के लिए सपोज किसी और का, मेरी बेटी क्या प्रोफेशन में जाए, वीनस वाले प्रोफेशन। इजी इजी, अभी हमने आपसे यस नो नहीं पूछा, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पूछा है।
बकुल जी अनम्यूट कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ। नहीं गुरुजी जी, अगर हमने कार्ड से देख रहे हैं तो हमें हाउसेस कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको आगम निगम कंसिडर करना है कि आगम क्वेश्चन है, निगम क्वेश्चन है, और दाखिल खारिज मुंकलिब साबित किसमें से क्या है, दैट्स इट। कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आगम क्वेश्चन है। वेरी गुड आरती जी, यस यस ईना जी करेक्ट। हाँ जी बकुल जी बताइए। सर आप अनम्यूट हैं पर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार फिर से अब अनम्यूट करिए। हाँ जी, मुझे ही नहीं आ रही है, किसी को फिर बकुल जी की आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही सर आपकी आवाज। बकुल आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक चेक कीजिए प्लीज। हेलो। यस अब आ रही है। ओके सॉरी मैम, मैं ये जानना चाह रहा कि किसी भी केस में कोई वकील है, अपने पास 2-3 ऑप्शन है, तो सिलेक्ट करने के लिए ठीक है। आपने क्या किया, आपने बोला कि वकील ए के लिए मैंने एक कार्ड निकाला, वकील बी के लिए मैंने एक कार्ड निकाला, वकील सी के लिए मैंने एक कार्ड निकाला। अब वकील एक का आया नुस्रतुल खारिज, ओके शहर यहाँ गए। वकील ए का आया अंकिश विच इज बैड। वकील बी का आया इज्जतमा विच इज एवरेज। वकील सी का आया नुस्रतुल खारिज, आ गया ये रहा, गुड। तो मेरे हिसाब से आउट ऑफ द 3 वकील सी। और कौन सा ये क्वेश्चन कौन सा होगा, आगम या निगम? ये ना आगम क्वेश्चन है ना निगम क्वेश्चन है। इसमें आगम क्वेश्चन होता क्या मुझे सही लॉयर मिलेगा? ओके, और ये किस हाउस से देखना है? ये कोई भी हाउस नहीं है सर, ये क्या मुझे सही लॉयर मिलेगा, कैसे, मतलब आई डोंट थिंक दिस इज अ प्योरली कार्ड रिलेटेड क्वेश्चन। इसको आप किसी हाउस में कैसे क्वालिफाई करोगे? ये हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी टाइप क्वेश्चन होता है ना। यस यस, ओके थैंक यू। Jasleen ji, if we get all 3 good, then you can choose anyone. If you get 1 very good, 2 good, then very good. क्या मुझे लॉयर सही मिलेगा? क्या? सृष्टि इट्स अ आगम क्वेश्चन। Yes ma'am, no ma'am, I'm thinking about the house. It is a help question. तबीयत कब ठीक होगी, तबीयत कब ठीक होगी, आगम होगा। मेरा डिजीज कब जाएगा, निगम होगा। 6th हाउस के हैं दोनों क्वेश्चंस। एसके जी अनम्यूट करिए, अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। थैंक यू मैम। हाँ जी सर। जी हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन वही है कि जैसे मान लीजिए कि कार्ड से मैंने किसी को रिप्लाई दिया, मैं क्वेश्चन था हमारा, किसी ने पूछा हमसे कि मेरी शादी कब, मेरी शादी होगी, मैंने बोला हाँ हो गया। फिर उसने पूछा मेरी शादी में लड़का कैसा होगा, वो आपने बताया, वो हमने प्लान देख के बता दिया। अब उसने पूछा मेरी शादी कब होगी, कब के तो लिए कब होने के लिए बनानी पड़ेगी? नहीं, तो उसके लिए फिर क्या हमको डाइस पे लिखनी पड़ेगी? हाँ जी, प्रॉपर जैसे कुंडली बनाते हैं ना डाइस फेंक के, वैसे बनानी पड़ेगी, क्योंकि कब का आंसर कार्ड से नहीं होता। नहीं, अगर ये जो सर्कल है इसको अगर मैं हल्फा मार के कैलकुलेट करूँ तो रिजल्ट नहीं आया? नहीं, क्योंकि एनीवे ये हल्फा नहीं है, ये आपका फाइनल यस नो वाला आंसर है। जो हम कैलकुलेट करते हैं ना 1 मतलब हाउस प्लस 14 प्लस 15, वो कैलकुलेट करते हैं ना यस नो के लिए, ये वो वाला है। इसमें आपको हल्फा तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए पूरा डाइस देकर के पूरी कुंडली बनानी पड़ेगी। कब के लिए तो आपको बनानी पड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू। देखिए कब के लिए आप एक जुगाड़ भी कर सकते हैं। अभी करते करते मैं सोच रही थी, जैसे मैंने आपको ये दिया है, किन लोगों ने मेरे साथ टैरो किया हुआ है, एक बार यस नो लिखिए। चलिए, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। टैरो में क्या बोलते हैं, फायर को, वॉन्ड्स को डेज मानते हैं, नहीं स्वॉर्ड्स को डेज मानते हैं, वॉन्ड्स को वीक्स मानते हैं, कप्स को मंथ्स मानते हैं, और पेंटिकल्स को ईयर्स मानते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो एडवांस का पार्ट है, अभी मत करिए।
यस अगर आप हाउस के बारे में कंफ्यूज है तो आप ब्राउजर से चेक कर लीजिए, अदरवाइज मैं बोलती हूँ हाउस के बारे में कंफ्यूज है, जो 2 ऑप्शंस में से लग रहा है उसमें से कोई भी एक लिख लीजिए, आपको आंसर फिर भी मिल जाएगा, उसी हाउस के हिसाब से आंसर मिलेगा। नो लॉयर मिलेगा इज एन आगम क्वेश्चन, उसका इशू का कोई लेना देना नहीं है। हल्फा का कैलकुलेशन कैसे होता है? हल्फा इज 1 प्लस हाउस, 14 प्लस 15 वाला तो आंसर आपका आया है। Yes, first house plus question house is final answer in Alpha. मेरा घर का बनेगा आगम, हाउस होगा 4th। ओके रश्मि जी अनम्यूट करिए, उसके बाद मैं मेघालिया नीना जी का भी क्वेश्चन लेती हूँ। मैम जैसे नॉर्मल क्वेश्चन अभी आपने बोला कि मुझे वकील अच्छा मिलेगा, तो उसके लिए हमें इन कार्ड में से एक ही कार्ड लेना है और प्रेडिक्शन कर देनी है, हमें हाउस वगैरह या कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है। कार्ड्स के साथ नहीं है, ठीक है। और अगर क्लाइंट हमारे सामने बैठा हुआ है और उसने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें कुंडली बनाने की जरूरत है, तो हम कार्ड से अगर कर रहे हैं तो 4 कार्ड्स निकलवाएंगे और उनके सिंबल्स हैं वो नोट करेंगे। आप निकालें। अच्छा हम नहीं निकालेंगे या फिर डाइस से करेंगे? डाइस से करेंगे। अगर क्लाइंट नहीं है पास में तो हम वो 4x4 स्क्वायर जो आपने नंबर क्लाइंट नहीं है पास में तो डाइस करिए, कार्ड करिए, कुछ भी करिए। क्लाइंट सामने होता तो 4x4 बनवाएंगे ना, क्लाइंट ने भरना है 4x4। ठीक है बस थैंक यू। अच्छा क्या मुझे प्रॉपर्टी मैटर के लिए, देखिए अभी संजय जी ने बोला 9th हाउस, मुझे भी 9th हाउस लगता है, 9th हाउस लक का है, हेल्प का है, तो क्या मुझे लॉयर मिलेगा? अगेन लक हेल्प की बात है, तो मुझे भी लगता है ये 9th हाउस का ही है। अब प्रॉपर्टी मैटर के लिए लॉयर मिलेगा या नहीं, उसका प्रॉपर्टी मैटर से कुछ लेना देना नहीं है, लॉयर से लेना देना है, तो आई ऑल्सो थिंक इट इज़ अ आगम क्वेश्चन ऑफ द 9th हाउस। चौसर इसके जैसी ही एक गेम है, बट चौसर आजकल खेली नहीं जाती है, तो मतलब अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं सिखा सकती हूँ एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर, बट चौसर का प्रिडिक्शन में कोई यूज़ नहीं है, चौसर इज जस्ट अ गेम यूजिंग द डाइस एंड एवरीथिंग। मैम व्हाट्स द हाउस फॉर डाइवोर्स? डाइवोर्स मैरिज दोनों 7th हाउस से देखेंगे। देखिए नॉर्मल उसमें आई थिंक 9th हाउस से सेकेंड मैरिज देखते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 5th हाउस से लव मैरिज, 7th हाउस से मैरिज, आई थिंक नॉर्मल में मैं आपको सिंप्लीफाई करती हूँ, डाइवोर्स के लिए भी 7th देखिए, सेकेंड हाउस के लिए 7th देखिए, मत उसको कॉम्प्लिकेट करिए क्योंकि हमारा नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी नहीं है। रश्मि जी म्यूट हो गई, ओके बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है कि 9th हाउस का ही है क्वेश्चन, मैंने यही बोला 9th हाउस है सेकंड मैरिज के लिए, बट अगर आपको नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी लानी है तो लाइए, जिनको नहीं पता वो 7th हाउस ही लीजिए। हाउसेस ओके, फर्स्ट हाउस हो गया सेल्फ, जो क्वेश्चन पूछना है उसके बारे में, पर्टिकुलरली उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी सोच कैसी है। सेकंड हाउस हो गया उनका पैसा, पैसा मतलब उनका वेल्थ क्या है। थर्ड हाउस हो गया उनके भाई बहन, ठीक है। फोर्थ हाउस हो गया, रफली बता रही हूँ, फोर्थ हाउस आप ले लेंगे घर कपड़ा मकान, मतलब रोटी कपड़ा मकान, इन दैट वे, पोजेशंस कैसी है, उनका घर कैसा है। 5th हाउस हो गई पढ़ाई हो गई या उनके बच्चे हो गए। 6th हाउस हो गया इजीली रोग शत्रु कि क्या डिजीज है, क्या डेट है, क्या एनिमीज हैं। 7th हाउस पार्टनरशिप हो गया, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, पर्सनल पार्टनरशिप हो। 8th हाउस हो गया हिडन साइंसेस जी। 4th हाउस जो है सुख स्थान है, तो सुख में हम क्या देखते हैं एसेंशियली कि क्या क्या है उनके पास, मटीरियल थिंग्स। 8th हाउस हो गया हिडन चीज़ें, ओकल्ट, डेथ, मृत्यु, पढ़ाई, ये जैसे एडिक्शंस, ऑल दीज थिंग्स, सेक्स वगैरह सब 8th हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस हो गया एसेंशली लक एंड स्पिरिचुअलिटी, कि लक रिलेटेड क्वेश्चंस या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। 10th हाउस हो गया व्यापार, काम उनका अच्छा होगा या नहीं होगा, कैसा होगा। 11th हाउस हो गया उस व्यापार से उन्हें प्रॉफिट कैसा आएगा।
ठीक है, उनका प्रॉफिट क्या होगा, वो कैसे पैसे कमाएंगे। और 12th हाउस हो गया खर्चे का घर, सिंपली एक्सपेंडिचर, ट्रैवल, हॉस्पिटलाइजेशन। इवन 12th हाउस जेल का भी, जेल का जो योग है वो 12th हाउस से देखा जाता है। ये सब मैंने लिखा हुआ है। तो अगर आपको बोलना है तो इजीली 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, कि आपका खर्चा कहाँ होगा और कितना नेगेटिव चीज़ों पर होगा, कितना पॉजिटिव चीज़ों पर होगा। ये रफली याद कर लीजिए, फिर आप वो याद करते रहिएगा। और अगर हम चलेंगे तो हम ऐसे जाएंगे तो हम डिजीजेस देख सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन, अगर मतलब फर्स्ट हाउस जो है हमारा वो फेस है, सेकंड हाउस थ्रोट है, थर्ड हाउस आर्म एंड शोल्डर्स है, फोर्थ हाउस चेस्ट है, ठीक है, ऐसे करके मैंने सारे उसमें लिखे भी है। वी गो डाउन टू द फीट। फॉरेन ट्रैवल होता है 12th हाउस का मोस्टली, और पुराने टाइम में 200 किलोमीटर से ज़्यादा को फॉरेन ट्रैवल माना जाता था, अब नहीं माना जाता, अब देश छोड़ना है इस फॉरेन ट्रैवल। देखिए एसेंशियली 13 से 16 ना, इवन दो हाउसेस दिए गए कैलकुलेशन से, हम कभी पर से देखते नहीं है क्योंकि हमें प्रॉब्लम पता है। अब जैसे 13th हाउस है, वो कॉम्बिनेशन है 159 का, ठीक है, तो आपका बेसिकली 159 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो आपकी पर्सनालिटी का हाउस हो गया। जो 14th है वो 2 6 10 है, कि आपका पैसा कैसे होगा, आपकी वेल्थ कैसे होगी, कि आपका डेट कैसे होंगे। तो एसेंशियली वो हो गया आपकी पैसे की चाह का घर, ठीक है। 15th हाउस हो गया 3 7 11, मतलब आप किस चीज़ के लिए क्रेव करते हैं, कौन सी चीज़ आपकी विशेष हैं, क्या आपने अपने अंदर की आपकी विशेष छुपाई हुई हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी सोसाइटी कैसी होगी, ये सब हो गया 15th हाउस। और 16th हाउस 4 8 12, ठीक है। तो एसेंशियली ये आपकी लाइफ की जर्नी एंड एंड ऑफ लाइफ, मोक्ष के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो हम पर से जो अभी तक है, हमारे पास हर हाउस का इतना डिस्क्रिप्टिव है, हमें कभी भी 13 से 16 हाउसेज लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि 159 में से मुझे पता है कि कौन से हाउस का आंसर है। तो इन ऑल क्वेश्चंस टिल नाउ मैंने अबव 500 क्वेश्चंस करे होंगे। आई हैव नेवर टेकन 13 to 16, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हाउस ऑलरेडी 1 to 12 में मिल जाता है। 13 to 16 इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज हाउसेज। गुड या बैड का जो दिया हुआ है वो आपको रिजल्ट दिया हुआ है। जैसे अभी मैंने बताया कि आपने 3 लॉयर्स के लिए निकाला, ठीक है, गुड निकाल दिया, वेरी बैड निकाल दिया, वेरी गुड निकाल दिया, तो आप वेरी गुड वाला चूज करेंगे। जो आपका अगर पॉजिटिव में रिजल्ट है तो बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है, और अगर नेगेटिव में रिजल्ट है तो काफ़ी खराब आएगा। मेघाली जी अनम्यूट। थैंक यू मैम। मैम जैसे क्वेश्चन है कि कोई कोर्ट केस के लिए आता है कि मेरा भी कोर्ट केस जीतूंगी या नहीं, तो हमें अगर पता करना हो कि ये ट्रू है रेमेडीज लेने से पहले, तो वो कर सकते हैं इससे पता? क्या पता करना हो? जैसे कोई कोर्ट केस के लिए आता है कि मैं ये कोर्ट केस जीतूंगी या नहीं जीतूंगी, कैसे होगा? रमल से हम ये देख सकते हैं कि ये इंसान सच बोल रही है। तो आपका जब मैंने बोला ना फर्स्ट या 15th में जमात या वो आएगा, वो उसी से पता चल जाएगा। अच्छा, बस वो उसी से ही देखना। 100% उसी से पता चल जाएगा। 99% ऑफ केसेस में जब मेरे साथ ऐसा होता है, अगर जमात या तरीका आ गया फर्स्ट या 15th हाउस में, मतलब कि ये सही नहीं है। और मतलब मैं आपको खुद बताई 99% ऑफ द केसेस में आ ही जाता है। हाँ, मेरे केस में आया कल मेरे ऐसे ही, तो मैंने सोचा कि खारिज है, मतलब नहीं बन, बिल्कुल तो खारिज कर दीजिए। अगर आप थोड़े टाइम बाद फिर करते हैं फिर खारिज हो जाता है तो 100% दे जाओ, फिर हम उनको रेमेडीज देंगे। मेरे साथ ये हुआ है 2-3 कि एक ही क्वेश्चन के लिए थोड़े थोड़े टाइम में करने में खारिज कुंडली होती। फिर मैंने उन्हें बोला कि या आप झूठ बोल रहे हैं या आप सही नहीं है, मेरे पास इसकी कोई रेमेडी नहीं है। ओके मैम, एक क्वेश्चन और है कि ये जो हमने प्रश्न कुंडली बनाई, क्या इसको हम जो इसके शक्ल है इसको एज एन उसको पढ़ सकते हैं? फर्स्ट हाउस सेल्फ के बारे में है, तो इसका जो शक्ल सपोज नहीं नाम आएगा, तो हम क्या पढ़ सकते हैं कि जैसे ये गुरु का इंसान है, ये क्या हुआ है, झूठा है, इस तरह से रीड कर सकते हैं ये सारे कुंडली की तरह? जी नहीं, कि अगर फर्स्ट हाउस में कुछ आया, सेकंड हाउस में कुछ आया, वो रीड करना है आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पर्टिकुलरली उसको एडवाइस नहीं करती हूँ, बट मैं सिर्फ पढ़ना होता है तो फर्स्ट हाउस पढ़ती हूँ, ओनली फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, बाकी नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, बट इंसान कैसा। हाँ, जैसे हम टैरो में भी एक फर्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं अगर कि एनर्जी कैसी है इस इंसान की, तो इस तरह से मैं उस केस में सिर्फ फर्स्ट हाउस देखती हूँ। फर्स्ट हाउस देख सकते हैं, जो आया मेरे पास उसके दिमाग में क्या है। ओके, तो हम रीड कर सकते हैं। कर सकते हो, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज फॉर योर अपने लिए।
तो हम बाकी हाउसेस नहीं यूज करने की, जैसे फर्स्ट मेडिटेशन हो मतलब आपको पर्सन के बारे में जानना है तो दैट इज ओनली द फर्स्ट हाउस। ठीक है मैम, जो आपके पास आया है वो क्यों आया है? ओके ठीक है। यस सीना जी। हाय मैम, वंस अगेन मैम, मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है अबाउट द रीजन फॉर एनीथिंग। फॉर एग्जांपल मेरा रीजन फॉर स्लो बिजनेस चल रहा था जो मुझसे किसी ने पूछा था, बट इज इट कैन वी फाइंड रीजंस आल्सो व्हाई अ पर्टिकुलर थिंग इज नॉट वर्किंग आउट फॉर समबडी? लाइक अभी तो बिजनेस क्वेश्चन था, क्यों नहीं चल रहा है मेरा काम, या इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड इट थ्रू रमल? क्यों नहीं चल रहा है मेरा काम? एंड द कार्ड दैट हैज कम आउट इज सैटर्न। तो आप बोल सकते हैं कि ईदर यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड। सैटर्न है ना, व्हाट डज सैटर्न सिग्निफाई? स्लो, डिले, दैट मे बी देयर इज गोइंग टू बी स्लो laziness. हाँ, कि लेजीनेस है, आप यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ, ऑल दिस Not, maybe you are not in the right profession. Will that be or no? राइट। तो आप उसके लिए फर्स्ट कार्ड निकालेंगे, इज दिस पर्सन इन द राइट प्रोफेशन? Okay, so we have to bifurcate that question step by step, Yes. and then we can accordingly maybe pull out a card or maybe. So first I take out, is this person in the right profession? Yes, this person is in the right profession. Why is he not growing? कार्ड आया, कार्ड हमने देखा कि अरे यार अच्छा ठीक है, जैसे आया अगर सेकंड आया तो मे बी राइट एफर्ट्स नहीं है, बिकॉज कर्म Okay. है ना, कर्म है सेकंड, डिसिप्लिन नहीं है, फर्स्ट एफर्ट्स केतु का नहीं है। आया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? I had no idea. Sorry. कि थोड़ा सा आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करिए, हर वक्त पैसे के पीछे मत भागिए, मे बी डाइवर्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यू आर इन द राइट प्रोफेशन, बट आप बहुत कॉन्सेंट्रेट हो गए हो उस पर, आप माइंडलेस एफर्ट्स डाल रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है, योर एफर्ट्स आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड लाइक दैट। Okay, and ma'am, एक और question था, you were discussing about the attributes of the zodiac signs. तो उसका भी कोई PDF है, or should I just Google it कि क्या Aquarius का क्या रहता है attributes and everything? देखिए आपने मतलब आप गूगल कर सकते हो, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो प्लैनेट जैसे अब टॉरस का है, तो टॉरस का क्या होता है दैट दे आर लिटिल लेजी, वीनस साइन है, ठीक है, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू ब्यूटी, थोड़े से लेजी हो सकते हैं, बट व्हेन दे वर्क हार्ड, दे वर्क वेरी हार्ड, दे आर मटीरियलिस्टिक। I have no idea about the zodiac signs, so I think I'll have to Google it only. But हाँ, little bit so you मिल can. जाएगा. But एंड यू शुड ऑल्सो, बिकॉज दिस विल हेल्प। अगर आप कल को एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो ये 12 राशियां ही तो हैं, आपको हर राशि के बारे में जितना पता होगा उतना ही बेटर है, ठीक है। एक्वेरियस वाला थोड़ा फ्री थिंकर होगा, विल नॉट लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं करते होंगे रूल्स रेगुलेशन से, थोड़े फ्रीडम लविंग होंगे, लाइक दैट। okay, I will check that. ठीक है. Can I send it to you for verification once I've made it? Yes. अरे go to ChatGPT, right? Basic. हाँ, I'll do that only. website. Easily you'll get. Cool. Thank you. एस्ट्रोन्यूमो में मैम ने बताया था, बिल्कुल, हाँ जी, एस्ट्रोन्यूमो का पढ़ लो। ओके, नाउ अब क्या है, विच ऑर्गन विल हैव अ प्रॉब्लम, हाउस से पता चलेगा। मैं ना एक बार वो PDF खोलती हूँ, मैंने जो आप सबको सेंड करी थी, उसमें मैंने ना पर हाउस डिजीज भी लिखा हुआ था कि किस से रिलेटेड होगा, किस बॉडी पार्ट से। टॉप डाउन डॉक्यूमेंट्स, ये देना हाउसेस प्ले करते हैं। देखिए, रिलेटेड बॉडी पार्ट, फेस, हेड, सेकंड का है थ्रोट नेक, थर्ड का है शोल्डर्स आर्म्स, फोर्थ का हार्ट लंग्स, फिफ्थ का वूम स्टमक इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, सेवंथ का है एनस, एट्थ का है एनस, नाइन्थ का है थाइज, 10th का है नीज, 11th का है काव्स, 12th का है फीट। अब 13th है तो 1 5 9 कंबाइन करिए, हेड, चेस्ट या 9th क्या था, नी वाल, थाइज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये आप जब कंबाइन करेंगे तो ऐसे बताएंगे। अब कैसे बताना है कौन से बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, वो पूछते हैं अरे यार मेरा डायग्नोज नहीं हो रहा, मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही। कार्ड शफल करो, देखो क्या 8th हाउस आया, तो मतलब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली IBS हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन वगैरह वैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फीट इज 12th हाउस, ठीक है।
नाउ इट इज, मतलब मुझे ऐसा, आप जब रमल कार्ड्स पढ़ने बैठेंगे ना, आपको 8 नंबर राशि, अगर 8 नंबर आपने राशि से कनेक्ट किया तो इट्स सब प्राइवेट पार्ट्स। नो मैम, मैंने उससे नहीं कनेक्ट किया, मैंने 8th हाउस से कनेक्ट किया। 8 इज हाउस। 13 to 16 आया, मैंने आपको बताया। 13 इज 159, 14 इज 2 6 10, तो उन सब से कनेक्टेड होगा। आपने क्या करना है, आपने कार्ड्स कैसे लर्न करने हैं, आपने 3 PDF निकालनी है प्रिंट आउट, 16 शक्ल फीचर्स, प्रोफेशन एंड डिस्क्रिप्शन। आप कार्ड निकालिए, तीनों में से पढ़िए, ठीक है। फिर आप कार्ड निकालिए, तीनों में से पढ़िए क्या डिस्क्रिप्शन आ रही है। दैट्स एज ईजी एज इट इज। इसमें कुछ सिखाने वाला नहीं है, इसमें एज मच एज समझने वाला है। अब जो बोल रहे हैं कि हमें चौसर सीखना है, ठीक है, मैं कुछ चौसर के अराउंड प्लान करती हूँ कि हम कैसे सीख सकते हैं। जी श्री पूजा जी पूछिए। मैम मुझे हेल्प के लिए, जैसे मैंने कार्ड स्प्रेड किए, ठीक, तो रैंडमली कोई कार्ड आ गया, ये वाला अभी ये आया है, राइट। तो जब भी हेल्थ का क्वेश्चन हो, इन दैट केस हम प्लेनेट को कंसीडर करते हुए नहीं रिप्लाई करेंगे, सिर्फ ये इसको ही कंसीडर करेंगे। नहीं, जैसे किसी ने पूछा कि मुझे हेल्थ इशू ही नहीं पकड़ा जा रहा, तो वो जो हाउस आएगा उस केस का हेल्थ इशू है। मतलब इन दैट केस यहाँ पे 3 है, तो हम थर्ड हाउस को रिलेटेड जो इशू है वो बोलेंगे। आर्म्स एंड शोल्डर से रिलेटेड इशू हो सकता है। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी कि प्लेनेट देखना है या नंबर देखना है। नहीं, अब प्लैनेट नहीं देखना, नंबर देखना है, हाउस देखना है, कौन सा हाउस आया, उस हाउस से रिलेटेड डिजीज है। एनी अदर क्वेश्चन? थोड़ा सा क्लियर हुआ है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, खुद ही समझने लग जाएंगे। यस, 2 ही ऐसा आए हैं अभी तक। You can put in the request with the team, ईना, देखते हैं वो क्या कहते हैं। We are almost done with the question and answers. Yes, 16 house cards. ये 14 है तो मतलब ये 14th हाउस का सिंबल है, 12 है मतलब ये 12th हाउस है, 5th है तो मतलब 5th हाउस है, ठीक है। अभी जब मैंने इनिशियली बहुत टाइम पहले रमल सीखा था, तो जब कार्ड्स सीखते हैं ना, कार्ड्स ओवरवेलमिंग लगते हैं क्योंकि कार्ड्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। अभी तक जो हमने कुंडली करी, कुंडली तो क्या थी, यस नो टाइम, धड़ बताया, खत्म कर दिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट कार्ड्स आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन। कार्ड्स में आपको इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है, जैसे टैरो में हम करते हैं, तो वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 100%। इवन इफ यू नीड एनी हेल्प, अगेन मैं इसलिए अभी तक वो थी कि अब आप ग्रुप में रेगुलरली प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस पूछिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड एक चीज मैं ये कहूंगी, टैग कीजिएगा सृष्टि को, बिकॉज इतने क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ग्रुप्स में, ठीक है, टैग कीजिएगा जी। यस, आफ्टर प्रैक्टिस, देखिए कोई भी चीज है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखी, एक बार में कम समझ आई, फिर दोबारा सीखी तो ये दोबारा सीखी जी, ठीक है जी। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, प्लीज आप लोग 2 जगह से लॉगिन मत किया कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, बट पीछे टाइम में ऐसा कुछ हुआ होगा हमारे साथ जो हम लोग 2 जगह से लॉगिन करने से मना कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हमें रिक्वेस्ट भेज दीजिए कि आप 2 जगह से लॉगिन करेंगे। उससे क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए, हमें ये ना लगे कि आपके नाम से किसी और ने भी लॉगिन किया। अब पहले सुमन अरोड़ा जी 2 थे, फिर कोई और 2 है, अभी भी नीता जी भी 2 है, तो फिर लगता है ना कि कोई और क्या, टीम हमें लिख लिख के भेजती रहती है कि ये लोग 2 जगह से हैं, ये लोग 2 जगह से हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी लेने हैं तो डोंट वरी, हम सारी PDF देते हैं, ऐसा कोई भी टेक्स्ट शेयर नहीं होता जो आपको सेंड नहीं किया जाता, तो ट्राई करिए, 2 से मत आइए। सिस्टी, एक क्वेश्चन किसी को भी अनम्यूट करके ना, एक प्रैक्टिस सेक्शन एक क्वेश्चन का करा लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन किसी का भी, लास्ट क्वेश्चन होगा, किसी को भी अनम्यूट कीजिए, उनका क्वेश्चन पूछिए, सेकंड क्वेश्चन पूछिए, थर्ड क्वेश्चन पूछिए और उनको आंसर दे दीजिए, ठीक है। प्रवीणा म्यूट करिए, पहले आपका क्वेश्चन होगा, कोई बताइए। मैंने इसके लिए हैंड रेज नहीं किया था, मैं तो अभी ज्वाइन हुई हूँ और मुझे क्लासेस के बारे में मालूम ही नहीं था, आज कौन सा लेक्चर है वो भी पता नहीं है, इसलिए मैंने प्रवीणा जी, हमारी रमल की क्लास चल रही है, पिछले 5 संडे से चल रही है, कोई बात नहीं, आप नए हैं, ये दोबारा आएगी, आप दोबारा कर सकते हैं। मतलब एवरी संडे? नो, इट वाज फॉर 5 संडेज व्हिच आर ओवर, आज लास्ट सेशन है एंड रिकॉर्डिंग में चला जाएगा ये, और ये जब भी दोबारा आएगा 3 महीने 4 महीने में, आप दोबारा भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स को भी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट वीक की चैंपियंस का दिया है, तो मुझे नहीं पता। तो ये हमारा हर कोर्स रोटेशन में आता रहता है, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। इनकेस आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते आपके मन में कोई क्वेरी आती है, ग्रुप में डाल दीजिए, सृष्टि मैम को टैग करके, ठीक है। ओके, थैंक यू।
सब लोगों की आप लोगों के क्वेश्चन है या सृष्टि को चूज कर लें पहले एक क्वेश्चन के लिए किसी को भी चूज कर आई लें? थिंक उन्होंने गिरीश जी अनम्यूट करिए इसलिए हैंड रेज करें। कुंडली से मैं आज नहीं कर रही क्योंकि हम कुंडली बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं, आज कार्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। आरती जी पूछिए मैम व्हेन डू यू प्रेफर कार्ड्स ओवर डाइस? आई प्रेफर कार्ड्स व्हेन आई वांट टू वर्क अ लिटिल लेस, ऑनेस्टली। सच बात ये है, जिस दिन नहीं मन करता पूरा बैठ के कुंडली बनाने का उस दिन मैं कार्ड्स चूज करती हूँ, अदरवाइज कोई साइंस ऐसे नहीं है। हेलो मैम। नमस्ते। हाँ जी गिरीश जी। मैम मैं पहले तो ये कार्ड दिखाना चाहूँगा, आज मैंने कार्ड बनाए हैं। मैं आपको ऐड कर रही हूँ, एक सेकेंड। ऐड स्पॉटलाइट, ओ वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने कलरफुल किए हैं सारे ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सृष्टि इनका कोई क्वेश्चन इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका एक फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी क्वेश्चन पूछिए गिरीश जी अपने मन से। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने अपने शोरूम के लिए जगह ले ली है, तो क्या मेरा उसके लिए पेमेंट का इंतजाम हो जाएगा अच्छे से और मेरा काम अच्छा चलेगा? अच्छा, आप मुझसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं? हाँ जी। नहीं, मैं चले गया। सर कार्ड दिखा भी दीजिए ताकि सबको मैं प्रे कर रही थी। अच्छा गिरीश जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28 अक्टूबर 1990। देखिए ब्याज आया है तो अरेंज हो जाएगा। गुड है, वेरी गुड है, हो जाएगा अरेंज। ठीक है मैम, थैंक यू। अगर अब कोई पूछता है हमें रेमेडीज कैसे देनी है, आपके इससे आया सपोज खारिज आया होता या कुछ आया होता, तो रेमेडीज कैसे देनी है? हमारे पास रमल की पर्स से कोई रेमेडीज नहीं है। रमल इज फॉर आंसरिंग। रेमेडीज आपने सप्लीमेंट करनी है क्रिस्टल से, वैदिक स्विच वर्ड से, वास्तु, न्यूमरो, रुद्राक्ष, जैसे भी करना चाहते हैं वैसे। रेमेडीज नहीं होती रमल में, रेमेडीज आपको देनी पड़ेंगी। उसके लिए आप हमारे चैंपियन मेंबर्स हैं, यू डन ऑल आवर कोर्सेज, यू नो व्हाट रेमेडीज हैव टू बी गिवन। ठीक है ना? चैंटिंग दीजिए, कार्ड मतलब सॉरी चैंटिंग दीजिए, क्रिस्टल दीजिए, रुद्राक्ष दीजिए, वो सब दीजिए। ठीक है, ठीक, थैंक यू। डेट ऑफ बर्थ क्यों लिया? क्योंकि अगर गिरीश जी नॉर्मली मेरे क्लाइंट होते तो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ होता है। मैंने प्रेयर बोली कि मैं गिरीश जी बॉर्न ऑन दिस डेट की रीडिंग कर रही हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, इसलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया। बताया था मैंने आपको कि वो मंत्र हैं वो बोलने हैं, उसके बाद बोलिए कि मैं इस पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ, नाम और डेट ऑफ बर्थ, और फिर रीडिंग कर दीजिए। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? किस किस को मतलब बहुत, अभी मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप मास्टर बन जाएंगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसीलिए संडे टू संडे के सेशंस रखे गए। मुझे पता था अगर इसको 5 दिन में सिखाया जाएगा तो बस वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी आप लोगों को सिखाने की, उससे हमारा आपको कुछ आएगा नहीं, इसीलिए इसको सिखाया है। तो जैसे सृष्टि ने आज सिखाया है आपको यस नो के क्वेश्चन, किस प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते हैं, रीजन, जैसे इना जी ने पूछा क्यों नहीं हो रहा, और कार्ड में कुछ आ जाता है, मार्स आता तो आपकी एग्रेशन ज्यादा है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं आप, या तो ओवर एक्शन ले रहे हैं या एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं प्लैनेट की एनर्जी के साथ। शनि आ रहा है, डिले हो रहा है, डिसिप्लिन नहीं है, एफर्ट नहीं है, राइट डायरेक्शन में राइट एफर्ट्स नहीं है, ठीक है, आलसी हो रहे हैं, इस तरह से आप उन्हें बता सकते हैं, रीजन भी बता सकते हैं, एनर्जी, प्लैनेट की एनर्जी देखकर। ठीक है, थोड़ा सा अगर सूर्य आ जाता तो आप बोलते बहुत अथॉरिटेटिव हो, इगोस्टिक हो, मानते नहीं हो, अपनी चलाते हो। अगर प्रॉब्लमैटिक में कभी भी सूर्य जाएगा, आपने सिंपली बोलना है कि आपकी ईगो बहुत बड़ी है। यस, दैट्स इट। ईगो बड़ी है, आप सुनते नहीं हो, कोई राय देता है तो आप लेना नहीं चाहते हो, है ना, क्योंकि किंग की जो क्वालिटीज है आप हर प्लैनेट, मून है तो ओवर इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हो, है ना, या डुअलिटी रहती है, डिसीजन ही नहीं ले पाते हो, ऐसा करके सोचते रहते हो, आपका दिमाग, मतलब जैसे मून की प्रॉब्लम आए तो आप हमेशा बोलो आप दिमाग पे हावी हो, योर माइंड इज रूलिंग यू, यू शुड रूल योर माइंड। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आज का सेशन आई थिंक सृष्टि यही हो गया हमारा पूरा रमल का। हम रमल एक और विद्या सीख चुके हैं, अब हमें रमल की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रमल ऐसी चीज़ है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। देखिए बाकी विद्याएं, वैदिक स्विच वर्ड, क्रिस्टल वगैरह, हमने PDF रेफर करी, हमारा काम हो गया, बट रमल ऐसी नहीं है, रमल नीड्स प्रैक्टिस।
Yes, sure, Ina ji, please practice. I'll take a doubt session if possible. जी बिल्कुल हम रख लेंगे, हमें पॉसिबल हुआ तो कमिंग वीक्स में हम एक डाउट सेशन रख लेंगे. एनीथिंग फॉर यू गाइस, आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने सारे क्वेश्चंस लिख के रखिए. सृष्टि को टैग करके आप साथ साथ क्वेश्चन डाल भी सकते हैं. सब लोग चौसर का बोल रहे हैं, चौसर सीखनी है. क्या चौसर सीखनी है? खेलेंगे क्या? वैसे तो मैं सिखा सकती हूँ. It's only a game, it has nothing to do with the diction. It's like Ludo. चौसर किसको सीखना है? सीखना है चौसर भी. चलिए देखेंगे आने वाले समय में किसी स्पेशल सेशन में आपको चौसर सिखा देंगे. ठीक है, चौसर भी सिखा देंगे. में खेलेंगे, फन करें. ठीक है, ठीक है, चौसर भी सीखते हैं. चलिए चलिए. अब एज अ बिकॉज शी इज मेंटर एट माय प्लेटफॉर्म, सृष्टि आप उन्हें रमल सिखाने के लिए कितने मार्क्स देते हैं, मुझे जानना है आप लोगों से. हे भगवान, ये तो मेरा टेस्ट हो रहा है. यस सृष्टि, आई हैव टू नो. देखिए किसी तरह का वो मत सोचिएगा कि मैम की डॉटर है. इफ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज, देखिए आप लोग फीडबैक देंगे तो मैं अपने आप को भी बेटर कर पाऊंगी. आई हैव टू लाइक वी हैव टू हेल्प ईच अदर. मैं नहीं चाहती कि कभी मैं आपके डाउट्स ना क्लियर कर पाऊँ या कुछ हो. आई हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन माई सेल्फ. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब जिनके क्वेश्चन है सृष्टि, क्वेश्चन ले लीजिए. चैंपियन रचना जी अनम्यूट कीजिए, नीता जी अनम्यूट कीजिए. यस, आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, रचना जी या नीता जी. यस नमस्ते. 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 Ma'am, I want to give feedback. Ma'am, as a champion, I have joined directly as a champion after mobile numerology. Ma'am, just due to I have little kids, I do not able to continue every time. But I used to see the recording and try to get connected when I get time. And my feedback is that ma'am कि आप मतलब टीचिंग तो जो इतनी बढ़िया है ही, बट जिस तरीके से आप सबको हैंडल करते हो ना, मतलब बहुत से क्वेश्चन है कई बार रिपीट होते हैं, फिर भी इसको इतना पोलाइटली सुनना, बार बार वैसे ही आंसर देना, मतलब मैं यूज टू सुनते हैं, मतलब इन चीज़ों को हैंडल करना इट्स वेरी ग्रेट. नॉलेज तो है, दे रहे हैं, बट उसको इस तरीके से जो आप हैंडल करते हो ना, वो बहुत अमेजिंग है. मतलब वी डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि वही क्वेश्चन कई बार लोग पूछ रहे हैं, समझ में आ गया, फिर भी दूसरे तरीके से पूछने कई बार ऐसा लगता है. बट इट्स वेरी ग्रेट कि आप उनको बहुत पोलाइटली, बहुत इम्पेशेंटली आप उसको सुनते हो और रिप्लाई करते हो. दैट इम्प्रेस मी वेरी मच. तो मैंने इस रिकॉर्डिंग ऑल्सो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस चीज़ को मतलब बिना लाइव भी नहीं करा, लेकिन रिकॉर्डिंग देख के भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. थैंक यू. क्योंकि वो इतनी बार चीज़ें रिपीट हो जाती हैं लोगों से और आप सबका आंसर देते हो. दैट्स वेरी ग्रेट. मैम सृष्टि मैम भी जस्ट आई कैन से शी शैडो ऑफ यू. वो भी सेम उसी तरीके से हर चीज़ को जितनी बार हो सकता है बता के किसी को भी वो नहीं कि शी विल टेल लेटर उसी टाइम पे कि ठीक है क्लियर करते हैं कैसे भी. थैंक यू. सृष्टि आई वांट यू पास पीडीएफ सारे के सारे आज ही. ठीक है, as soon as they're all ready. तभी मैंने उसे गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है. they're all ready. you will get them immediately after class. जी. एंड विनीता जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए. नीता जी आप अनम्यूट है. मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा कफ कोल्ड ठीक नहीं हो रहा सारे ट्रीटमेंट से भी, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी सूर्य नाड़ी चला के रखिए, चंद्र नाड़ी को बंद करके रखिए. जब काम करने बैठते हैं ना, अपनी चंद्र नाड़ी को यूं बंद करके काम करिए. जितना सूर्य एक्टिवेट होगा आपकी बॉडी में, ये तो एक छोटा सा बिना पैसे का उपाय है. नहीं है तो कॉटन डाल दीजिए यहाँ. सूर्य दिन भर सूर्य चलता है मोस्टली टाइम, फिर भी कफ कोल्ड नहीं ठीक हो रहा. अभी भी सूर्य चल रहा है. ऐसा होता नहीं है क्योंकि सूर्य है. आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? क्योंकि मेरे फादर इन लॉ के साथ सेम प्रॉब्लम है. इट टर्न्स आउट दैट ही वाज एलर्जिक टू अ फ्यू थिंग्स दैट वी वर यूजिंग रेगुलरली इन द हाउस. नो मैम, एलर्जी नहीं है मुझे. कोई मेडिसिन ये सब नहीं हो रही ना, होम्योपैथिक ना आयुर्वेदिक. नहीं तो अश्विना यूज करके सब कर लिया, रेकी भी कर ली, सब कर लिया, तभी क्वेश्चन पूछा मैंने. ऐसा होता नहीं है अनीता जी. मोस्ट ऑफ द टाइम जिनकी सूर्य नाड़ी चलती है ना, उनके शरीर की अग्नि बहुत तेज रहती है और उनको कोल्ड कफ नहीं, उनको पेट में अग्नि वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ज्यादा अगर सूर्य नाड़ी चलती है, बैलेंस में नहीं चढ़ती. अगर आपकी सूर्य नाड़ी चलते हुए आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बोलूंगी आप अपने टेस्ट सारे कराइए. मैंने सारे टेस्ट कराइए. हाँ, सृष्टि ने कार्ड निकाला है, देखते हैं क्या आया. कि क्या उनकी जो भी है, मैं देख रही थी कि किस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो 2 आया. दैट मीन्स थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है. मैं बस जनरली देख रही थी क्या प्रॉब्लम है, तो मतलब ऑटोमेटिकली 2 आया. मैंने ये जेन्युइनली कार्ड निकाला है कि उन्हें थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है. ईएनटी सब कनेक्टेड है ना. हाँ, तो एक बार आप प्रॉपर चेक करवाइए नीता जी. मतलब आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए. there may be some problem because I just wanted to know कि is it related to cold cough or is it a deeper problem. तो बस मैंने बोला था कि क्या प्रॉब्लम है, वो हाउस पता चल जाए, तो वो अपने आप ही 2 आ गया. ठीक है, मेरा भी मानना है कि समथिंग मेजर कैन बी देयर, क्योंकि अगर आपकी सूर्य नाड़ी चलते हुए आपका कोल्ड एंड कफ हील नहीं हो रहा है तो कुछ तो है जिसको दिखाने की जरूरत है नीता जी. ठीक है, ईएनटी वाले के पास जाइए
आपको जरूर वहां से हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके। वर्षा जी बताइए। नमस्कार मैम। मैम आपका सेशन बहुत अच्छा लगा है, पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं सारे सेशन अटेंड ही नहीं कर पाई हूँ और मैंने इनकी ना वीडियो ही देख देख के मैं अटेंड कर रही हूँ। लेकिन ये विद्या मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि मुझे लग रहा है इसको पूरी तरह अगर हम सीख लेंगे तो जैसे सृष्टि मैम ने बताया है कि हमें जो हम एस्ट्रोलॉजी में पूरे अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। और मैम आपका सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, जैसे अभी उन्होंने कहा कि आप इतना पेशेंटली बताते हैं, मतलब सविता मैम तो है ही इतना पेशेंस के साथ में बताने वाली। आप उनके भी एक कदम और आगे हो कि आप हर क्वेश्चन को लोग दर्जन बार पूछ रहे हैं, आप फिर भी उनका जवाब दे रहे हो, तो बहुत अच्छे से आपने बताया। और मैम अगर आप एक मेरे भी क्वेश्चन का अगर आंसर दे दें, क्योंकि मैं भी पूरी। हाँ जी मैम पूछिए मैम। जैसे एक्चुअली मैं भी ना 2 बिजनेस में हूँ, मतलब एक तो मेरा अपना है जो मेरा मैं एक्चुअली मोदी का बिजनेस करती हूँ जिसमें मेरा अपना स्टोर है, मैं उसको भी संभालती हूँ। और मेरा बुटीक भी, जैसे आप देख रहे हो मैं अभी बुटीक पे बैठी हूँ अपने भी। और एक मैं इसमें भी ओकल्ट पे भी आगे बढ़ना चाह रही हूँ। अब दोनों में हो क्या रहा है, मैं ना बैलेंस नहीं बना पा रही हूँ, मतलब मुझे बढ़ना है आगे, मुझे ओकल्ट पूरा सीखना है, मैं पूरी डीप इसके अंदर, पर मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे मैनेज करूँ या मुझे कौन सी फील्ड में ज्यादा बढ़ना चाहिए, कि मुझे उस फील्ड में या इस फील्ड में। तो इसके लिए क्या मुझे मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? काम है आपके क्या काम है? एक्चुअली मैम मेरा एक नेटवर्किंग बिजनेस है मोदी केयर, उसमें मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ। तो आपका मैंने पूछा व्हाट वर्क इज गुड फॉर यू, आपका प्लान वो आया वीनस, तो वीनस रिलेटेड वर्क, आपके दोनों काम वीनस रिलेटेड है? हाँ जी, उसमें भी हमारे पास ब्यूटी के भी प्रोडक्ट हैं और उसके भी नहीं, डायमंड का काम वीनस रिलेटेड होता है, एम आई राइट? डायमंड नहीं है मैम, वो तो एक पोस्ट है मेरी, डायमंड डायरेक्टर। ओह ओके, मतलब वो मेरे पोस्ट है, लेकिन हमारे पास उसमें ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे कि एक प्रोडक्ट है उसमें मार्केटिंग में, यस आई गॉट इट, मार्केटिंग वो एमएलएम। या तो कि आपके लिए आया है वीनस, दैट मीन्स आपका वीनस का काम बेस्ट है। आप ओकल्ट करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करिए, बट अगर मतलब आप ओकल्ट एज अ साइड रख सकते हैं, आपका मेन काम वीनस का होना चाहिए। अच्छा, वीनस का आपको कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए क्योंकि वो आपके लाइफ में लाएगा प्रॉस्पेरिटी। बाकी आप देखिए, हमेशा मैं बोलती हूँ एक होता है मन का काम और एक होता है कुंडली का काम। मन का काम वो करिए जो आप चाहते हैं, पर उसको साथ में सप्लीमेंट करिए जो आपको कुंडली का काम है उसके साथ। अगर आपका वीनस आ रहा है तो आप वीनस का काम कंटिन्यू करिए, साथ में आप अब जो मुझे लग रहा है आपका बुटीक माइट बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू देन द जो डायमंड डायरेक्टर वाला आप बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब एक्चुअली मेरा अभी ये जो बुटीक का था, मैं इसको तो बहुत हल्का, एक्चुअली मेरा बेटा डिजाइनर था तो वो बाहर चला गया, बस मैं उसी का थोड़ा रन कर रही हूँ, मैं इसमें ज्यादा फोकस नहीं रखती। मेरा मेन मतलब वर्षा जी एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, हाँ जी, एक साधे सब सदे, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेनी होगी। वीनस का काम बुटीक भी है, वीनस का काम आपकी अगर ज्वेलरी है वो भी है, वास्तु भी वीनस का काम माना जाता है, ठीक है? ये जितनी साइंसेस है एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आप सोचिए जुपिटर का काम है। हम जितना भी ये वैदिक स्विच वर्ड सीख रहे हैं, हम जितने भी रुद्राक्ष सीख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वीनस से रिलेटेड है। इवन टैरो इज वीनस, तो आप कर सकते हैं मिला जुला कॉम्बिनेशन करके। लेकिन मैं फिर से एक बोलूंगी, एक साधे सब सदे, तो आपको डिसीजन लेना होगा क्योंकि आपको बैलेंस टाइम खुद करना है। आप या तो अपना टाइम इस तरह से बैलेंस कीजिए कि 5 दिन मैं इस काम को दूंगी, 1 दिन सैटरडे संडे में मैं कंसल्टेशंस करूंगी, जैसे मोस्ट ऑफ मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है? अब आपको डिसीजन लेना हो अपनी सर्कमस्टांसेस को देखते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, जैसे हमने बताया ओकल्ट में भी फील्ड्स हैं जो वीनस रिलेटेड होते हैं। टैरो इज प्योरली वीनस, वास्तु इज प्योर वीनस, तो आप उनमें से भी कोई फील्ड्स पिकअप कर सकते हैं, ठीक है? तो श्री पूजा जी आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम आज के सेशन को सृष्टि को कहीं जाना है। यस, कोई एडवांस वर्जन नहीं है आपका, रमण यस मैम एक लास्ट क्वेश्चन सविता मैम दोनों से पूछना है। मैम बोले कि जिनको भी एस्ट्रोलॉजी उतनी नहीं आती है तो रमल से हमारे अच्छे हमें रिप्लाई मिलते हैं। अब जैसे मैं किसी के घर पे वास्तु करने गई और क्लाइंट ने पूछा कि कौन सा मुख्य द्वार मेरे लिए सही रहेगा, एस्ट्रोलॉजी आती नहीं, हाँ तो कैसे मैं कार्ड से कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि आप इस दिशा का बनाए तो अच्छा रहेगा, ऐसे तो इसको कैसे मैंने किया ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिया हुआ मैंने, वो दिया आपने देख सकते हैं, ठीक है यस। तो वहां से आप पकड़ सकते हैं। नॉर्थ आया तो 3-4 आपको एंट्रेंस 3-4 की देनी है, ये तो आपको बेसिक रूल पता है वास्तु में, ठीक है? मैंने डायरेक्शन दी हुई है, जो कार्ड आया उस डायरेक्शन का कर दीजिए। इसमें आप एलिमेंट नहीं देखेंगे क्योंकि आप देखिए साउथ का एलिमेंट फायर है, पर यहाँ पे ईस्ट में फायर नहीं सृष्टि, ईस्ट में भी वैदिक में फायर ही माना जाता है क्योंकि फायर वहां से स्टार्ट होती है। सो इट्स करेक्ट। तो मतलब माय पॉइंट इज यू विल ओनली सी द डायरेक्शन। यस
तो आप ये भी क्वेश्चन आपको पता चल गया, कोई पूछे मैं कौन सी एंट्रेंस का घर लूं या मुझे कौन सी एंट्रेंस बनानी चाहिए, ऐसे तो कुंडली में देखते हैं, वो एक स्पेसिफिक रूल होता है, 4th हाउस को देख के हम निकालते हैं कि इनको कौन सा सूट करेगा एंट्रेंस, ठीक है, क्योंकि राशियों की अलग डायरेक्शन होती है, 12 घरों की अलग डायरेक्शन होती है। जिन्होंने केपी किया उनको मैंने ये चीज सिखाई थी, नहीं तो आने वाले समय में एस्ट्रो वास्तु में मैं दोबारा से सिखाऊंगा, बट अभी रमन से चाहते हैं तो रमन से पता चलता है। यस प्रियंका जी। मैम नमस्ते मैम, अभी सृष्टि मैम से मैंने डिस्कस किया है, लेकिन आपके एनर्जी वास्तु क्लास से मैं वो यंत्र एडिक्शन यंत्र मैंने मंगवा लिया है मैम, बट हाउ टू यूटिलाइज दिस, बिकॉज अभी माता रानी के डेज चल रहे हैं ना, तो आई वांट टू। तो आप एक काम कीजिए, टीम को लिखिए, मेरा वॉइस नोट आपको आ जाएगा। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। जसलीन, आपका भी कोई क्वेश्चन है बेटा? Ma'am, just wanted to ask, for example, my mother-in-law was asking that my husband is not working properly since many years. अब ये कौन से हाउस में चेक करूँ या कौन सा कार्ड चेक करूँ कि why is he not able to put his effort? Why is he not? Your mother-in-law's husband, your father-in-law. No, my husband. Oh. So my mother-in-law was asking me. So आपके प्रोफेशन का घर है 10th हाउस. Okay. The 10th house related question कि क्यों काम नहीं बन रहे, क्यों काम नहीं हो रहे. Okay. So 10th house हम चेक करेंगे, but उसमें why का आंसर किस है मैम? Why का आंसर आएगा ना, तो जो प्लैनेट आएगा ना उससे। So as per planet, okay. So one thing I saw something अभी सेशन में कि it shows कि उनको प्रोफेशनली करना चाहिए, that is business नहीं करना चाहिए, as per astrology की जो मैम ने सिखाया था वो यही था. But then at the age of 41, 42, it's difficult कि आप 20 सालों से बिजनेस में हो, how can you shift to some other occupation? What are doing is a profession, it's not a business technically. Right. But I'm talking for him. It's no, I'm saying कि जैसे आप अभी एज पे ओकल्ट में आए हैं. True, I get it. So I can push him. I can pull him now. बिजनेस की जगह प्रोफेशन इज नॉट कि उन्हें सीए बनना है, उन्हें सीईओ बनना है. He can also supplement it with these things. Right, I get it. Thank you. Thank you. So thank you everyone from bottom of our heart. Please सीखी हुई विद्या को वेस्ट मत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन डालिए, आंसर्स आपको मिलेंगे। आप इसे अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं ना लाएं, कि आप इसको अपनी विद्या बनाएं ना बनाएं, जैसे हम सब चूज करते हैं, बट प्लीज प्रैक्टिस करके इसको मास्टर कर लीजिए। आपको नहीं पता दमन आपके कब काम आ जाएगी, ठीक है। एंड वी विल ऑफ कोर्स हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करेंगे आपके लिए, एक सेशन और डाउट सेशन टाइप देने का, ठीक है। और आपके क्या आंसर्स निकले या आपने इन दिनों में प्रेडिक्शंस की तो क्या निकला, तो हम इसके लिए एक सेशन रखेंगे आज, ठीक है। ठीक है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे 4-5 दिन पहले, ताकि आप टाइमली आके उस सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज, हाँ ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। इस मंथ हमने साथ में 2 कोर्सेज करे हैं, फर्स्ट टाइम मैंने 2 कोर्सेज 1 मंथ में पढ़ाए हैं, तो आई होप दोनों समझ जा गए हो। वैदिक स्विच वर्ड्स तो हमारे मास्टर्स है अब हमारे सारे स्टूडेंट्स, एंड रमल भी प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास जब हमारी रमल की होगी तब तक आपने सबने फीडबैक देने कि हमें सब आता है, हम रमल मास्टर कर चुके हैं। Yes, Jasleen, very soon we are coming with the advanced tarot वाला, basic tarot हम सिखा चुके हैं, we are coming with advanced tarot very soon, give us time in a month, so हम वो एडवांस वाला भी इसी तरह से लाएंगे, हम आप लोगों को ऐसे ही सिखाएंगे ताकि आप उसमें ग्रिडिंग बनती है टैरो में, ठीक है। मैंने बहुत लेवल पे सीखा है बट मैं टैरो से कनेक्ट नहीं कर पाई, यू आर नॉट ये मेंट फॉर एवरी साइंस, है ना। शायद मेरा इंक्लिनेशन वास्तु में इतना था, लेकिन टैरो भी ब्यूटीफुली जब ग्रिडिंग करते हैं ना, आपको आंसर्स मिलते हैं, ये समय, ये डेट, ये टाइम सब ग्रिड कर सकते हैं आप, वो भी सिखाएं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। अभी नहीं सीखा आपसे, तो जिन्होंने नहीं सीखा प्लीज रिकॉर्डिंग पे जाके देख लीजिए, जब तक नया आएगा। Maybe, ma'am, the plan is that maybe we'll do the basic once more and then do the advanced. तो देखते हैं हम कैसे प्लान करते हैं in the next 2 months। अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इवेंट है जहाँ पे हम आप सबसे मिल रहे हैं, उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। सो इवेंट में हम लोग आपको बहुत सारी जैसे कि आप लोगों के एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना वास्तु को लेके, रेमेडीज के साथ हम वहां पर आपको डिस्प्ले करेंगे, एंड दैट ऑल आई एम गोइंग टू टीच इज वैदिक, इसलिए गेट प्रिपेयर। मैं वैदिक के अलावा कुछ नहीं सिखाऊंगी वहां पे आपको, ठीक है, क्योंकि वैदिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैदिक के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते वास्तु में। अगर आप फुल फ्लैश करना चाहते हैं, वैदिक सीखना होगा, वैदिक मैं वहां सिखाऊंगी आप, ठीक है। एंड जो पूछते हैं कार्ड शफलिंग के लिए क्या प्रेयर है, मयूर जी ने पूछा, आई थिंक मैंने आपको 3 प्रेयर्स दी थी, ओम ह्रीम साम सदा शिवाय नमः, और एक वो दी थी ओम गंग गणपते नमः, और एक मंत्र दिया था, वो 3 मंत्र में से कोई भी बोल सकते हैं 5 या 11 बार। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय बाय।